Yes, sir, we can start. Okay, we can start because AMU has already joined. Okay. Okay, you may start now, please. Okay, sir. Good evening, everyone. Welcome back to the session, and we are in the second session of this fifth day of our NEP 2020 orientation and sensitization. I'm very happy to introduce our guest today, Dr. Nikunj Makwana, sir, from JNU, New Delhi, an ardent advocate for mental health awareness. Sir is widely recognized for his scholarly work and field expertise in the areas of psychology, mental health, and emotional well being. His academic pursuits and research focus on the evolving dynamics of psychological wellness, especially in the context of modern day stresses in educational and professional spaces. He has actively contributed to national and international platforms promoting conversations on mental health, resilience, stress management, and positive psychology. Today, Sir will be enlightening us on mental health, which has emerged as a critical concern in our institutions and society at large. So, we are truly fortunate to have him with us today. On behalf of Grace Valley College of Arts and Science, I welcome you, sir. Sir, please. Uh, okay. Uh, Thank you all. It is an honor to be speaking with you all as a part of NEP sensitization program. First of all, I would like to thank Dr. Faiza Abbasi ma'am, Program Director UGC MMTTC Aligarh Muslim University, to keep this important topic in a training program on NEP 2020 orientation and sensitization. I would also want to thank to Principal Sir for the same, and I also like to extend my greetings to all respected faculty members here. Uh, Today's lecture's focus is not just national education policy, but a powerful vision that places our students' well-being at the heart of learning. And within that vision, one thing is very important, that there is no education without mental health. Today we will discuss about why mental health is not an extra or nice to have in education, but it's essential. Uh, as we all see, mental health issues among students and youths are rising alarmingly, and from exam stress to anxiety to bullying, loneliness, identity struggles, our students are facing emotional challenges that impact their learning, growth, and even safety. I would like to quote one statement of WHO and begin my lecture. The quote is, there is no health without mental health, and mental health is an integral part of human health, and human health is integral part of one health, the health which we are talking about, the um, our earth's health, the earth we are talking about, environmental health, the earth we are in where we talk about animals health. So without much delay, I would like to start my lecture. I am Nikunj Makwana. I teach at Jawaharlal Nehru University. Uh, okay, so are my slides visible? Yes, sir. Okay, it is Okay, okay. so I have divided my entire lecture into majorly three segments. Uh, First segment is mental health in general. We will discuss about mental health in general. Then we will talk about mental health in higher educational institutions or educational spaces. But in that we will talk about global aspect as well as general aspects. And in the third part of my lecture, we will discuss about mental health in higher educational institutes of India as well as Indian context of
mental health with regard to NEP. And then after we will discuss with you if you have any queries or suggestion. So first thing is what is health. So as we all know, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. हम सब लोग हेल्थ के बारे में सुनते हैं. हेल्थ और एजुकेशन हमारे जो किसी भी देश की तरक्की के लिए वाइटल सेक्टर होते हैं, तो उसमें हेल्थ की अलग अलग देश ने, अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग परिभाषा व्याख्याएं दी है. लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव है. वो कहता है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी. मतलब किसी रोग का ना होना, किसी डिसेबिलिटी का ना होना, किसी इंपेयरमेंट का ना होना, वही हेल्थ है, ऐसा नहीं है. इन सब ना होने के बावजूद, डिजीज इंफर्मिटी ना होने के बावजूद भी हमारा हेल्थ खराब हो सकता है. इसके 3 पहलू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग. सो as we know, health is a vital for the growth and development of and productivity of any society. There is no health without mental health, as it is an integral and essential component of health, as we have seen in the World Health Organization's definition. Now, higher education has a significant positive impact on individual and societal health. We will talk this in later part. Now, after going through the definition of health, I would like you to introduce the concept of mental health. So हम सबको कहीं ना कहीं पता होता है कि मेंटल हेल्थ मतलब क्या. हम सबके मन में अपने हिसाब से हमारे लिए मेंटल हेल्थ की हमने डेफिनेशंस हमको पता होती है. लेकिन अगर मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन को अगर हम देखें, तो क्योंकि आज के इस टॉपिक का टाइटल ही मेंटल हेल्थ है, तो सबसे पहले हम लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है. तो मेंटल हेल्थ को समझने के लिए सबसे पहले मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन को डाइसेक्ट करना जरूरी है. आई थिंक इट्स ओके इफ आई यूज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, सर. Yes, sir. Bilingual. Oh, English, yes, sir. major part from South India. Okay, you can go. Thank you, Use sir. both languages, please. Okay, sir. So mental health, as we can see, mental health refers to our cognitive, behavioral and emotional well-being. So remember these 3 aspects. Cognitive मतलब कि psychological, behavioral कहीं ना कहीं social aspect से कनेक्ट करता है, एंड एज वेल एज इमोशनल एस्पेक्ट्स. तो इसको मैं थोड़ा डाइसेक्ट करना चाहूँ इस डेफिनेशन को, इस कंसेप्ट को. तो कॉग्निशन से हम लोग क्या समझते हैं? तो कॉग्निशन मतलब जो हायर फंक्शंस ऑफ ब्रेन होते हैं, जैसे कि एनालिसिस करना, मेमोरी, रिकॉलिंग पावर, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब हायर फंक्शंस ऑफ ब्रेन है. एंड ये जो फंक्शंस है वो किसी ना किसी प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं, एनालिटिकल प्रोसेस के साथ जुड़े हुए, तो उसको हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स कहते हैं. बिहेवियरल एस्पेक्ट बड़ा इजी है, सोशल इंटरेक्शन वगैरह में हम जो एस्पेक्ट की बात करते हैं, दैट इज बिहेवियरल एस्पेक्ट. एंड इमोशनल एस्पेक्ट. सो what is emotional aspect? Emotional aspects deals with our emotions, like sometimes we are angry, sometimes we are happy, sometimes we are frustrated. So all emotional aspects come into this arena. So अगर हम ओवरऑल मेंटल हेल्थ की बात करें, तो it is all about how we think, feel and behave. It also determine how we handle stress and relate to others and make choices. Mental health is important at every stage of life, from childhood to adolescent through adulthood. The term mental health is sometimes used to mean absence of mental disorder, but it's not the case. Why it's not the case? Because
As per World Health Organization, mental health is a state of well-being in which individual realizes his or her own abilities, can cope up with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सी डेफिनेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ की दी है। और ऊपर जैसे मैंने बताया कि मेंटल हेल्थ में हम 3 एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इंडिविजुअल की अपनी एबिलिटीज के बारे में बात करता है, कैसे वह व्यक्ति अपने जीवन के नॉर्मल स्ट्रेसर्स को कोप करता है उसके बारे में बात करता है, कैसे व्यक्ति अपनी कम्युनिटी में प्रोडक्टिवली फ्रूटफुली काम करता है एंड अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसके बारे में भी ये बात करता है। सो WHO stresses that mental health is not just the absence of mental disorder, but it's also individuals' abilities to strive and thrive. It is a broader state of well-being related to behaviors and emotions, thoughts, and also to the social and community life. So I have kept few slides as all the faculties are not from the health background, and so they are not working mainly on mental health or health aspect. So I kept few slides. We will just go briefly through these slides. So what is mental health? It is an integral component of health and well-being that underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships, and shape the world we live in. It involves how think, feel, act, relate to others, and how we make choices. So as I have told, mental health is more than absence of mental disorders. Mental health exists on a complex continuum which is experienced differently from one person to the other, with varying degrees of difficulties and distress, and potentially vary in different social and clinical outcomes. व्यक्ति से व्यक्ति तक मेंटल हेल्थ की जो असर करने वाले परिबल हैं वो अलग अलग असर कर सकते हैं, अलग अलग सोशल एस्पेक्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो अलग अलग असर कर सकते हैं। इस तरह से वो अलग अलग व्यक्ति पे अलग अलग असर करते हैं। मेंटल हेल्थ कंडीशंस इंक्लूड्स, वन पार्ट इज मेंटल डिसऑर्डर्स। अब ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स है वो कौन कौन से, जैसे ये मेंटल डिसऑर्डर की बात करें तो जो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या उसके पास जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सुना होगा स्किज़ोफ्रेनिया, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, पीटीएसडी, बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये सब मेंटल डिसऑर्डर्स है। लेकिन इसके बारे में हम आज ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं। आज हम सिर्फ जो हम लोगों को रिलेट करता है वैसे ही मेंटल स्टेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे ही मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बीइंग अ फैकल्टी हमें अफेक्ट करता है या बीइंग अ स्टूडेंट स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे उसमें प्रमुख है एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसीज। बट इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया मेंटल डिसऑर्डर्स, इस तरह के मेंटल स्टेट्स जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एज वेल एज साइको सोशल डिसेबिलिटीज भी इसमें आती है मेंटल हेल्थ कंडीशंस के अंदर। सो हम आगे बढ़े उससे पहले हम देखना चाहते हैं कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ। So if I want to divide determinants of mental health, then it may be divided as majorly as individual and social or structural determinants. So throughout our lives, multiple individual and social structural determinants may combine to protect or undermine our mental health and shift our position on mental health continuum. इंडिविजुअल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जैसा मैंने बताया उसमें कौन कौन से इंडिविजुअल या बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारे मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो हर एक व्यक्ति के अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस, जैसे कि ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा, पास्ट ट्रॉमा, कोई एब्यूज से वो सफर हुआ है,
emotional skills, substance use, genetics or brain chemistry, family history can make people more vulnerable to mental health problems. Social and structure determinants. So, exposure to unfavorable social, economic, geographical, geopolitical, or environmental circumstances, which may include poverty, violence, inequality, environmental deprivation, are all also increasing people's risk of experiencing mental health conditions. This risk can manifest themselves at all stages of life. As I have told you before, mental health is a continuum. It's a continuum which spread across our entire life cycle. So this risk can manifest at all stages of life, but we can see that those risks which occur during developmentally sensitive period, especially during early childhood, are particularly detrimental for mental health deterioration of a person, like harsh parenting or physical punishment. We have seen that, and this may deteriorate mental health conditions of adults in future. As also, in determinants of mental health, there are protective factors. So protective factors can occur throughout our lives and serve to strengthen resilience. So which are the protective factors? So these are individual social and emotional skills and attributes, as well as positive social interaction, quality education, decent work, safe neighborhood, and community cohesion all these are protective factors which determine mental health of an individual. So these mental health risks and protective factors can be found in society at different scales. There may be local threats, there may be global threats. The local threats heighten risk for individuals, families, and communities, while global threats heighten risk for whole populations and include economic downturns, disease outbreaks, humanitarian emergencies, and forced displacement and growing climate crisis. But here one thing we should remember is that each risk factor as well as protective factor has a only limited predictive strength. इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स से प्रोटेक्ट हुआ है या तो किसी रिस्क फैक्टर से इंपेक्टेड हुआ है, तो उन अलग अलग व्यक्तियों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम उपस्थित होगा कि नहीं वो हम श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया मेंटल हेल्थ जो है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है और उसकी इटियोलॉजी में मल्टीपल डायमेंशंस इंक्लूड होते हैं, और हम मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इटियोलॉजी में एक वेब ऑफ कॉजेशन का मॉडल हम एक यूज करते हैं, उससे हम मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को डिनोट करते हैं. इसमें हम ये नहीं कह सकते कि किस फैक्टर की वजह से किस व्यक्ति में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुआ. हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर्स एज वेल एज इंडिविजुअल बायोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा प्रोटेक्टिव हो तो एक्सटर्नल रिस्क का उस व्यक्ति पे ज्यादा प्रभाव ना हो. ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी. एक दूसरी बात यह है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या मेंटल डिसऑर्डर्स है वो रिसेंट टाइम में बहुत ही बढ़ रहे हैं, और इसका जो कारण है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स वगैरह को हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है, आगे हम देखेंगे कि इन सोसाइटी, समाज में एज वेल एज हमारे एकेडमिक कम्युनिटी में भी कहीं ना कहीं हम फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं, कोई डिजीजेस होते हैं, उसके प्रति हम ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका स्टूडेंट आके आपको बोलेगा कि अरे मेरे को टाइफाइड हो गया था, तो हम बड़ा उसके प्रति सहृदयता पूर्वक वर्ताव करते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, 4 दिन रेस्ट कर लियो, बाद में आना तू. लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमें बोलता है कि आई एम गोइंग थ्रू सम एंजाइटी इश्यूज और
acute disorder, acute depressive stages और acute depressive disorders. So हम उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते, या तो हम कई बार हम खुद ही उसको रिकॉग्नाइज करने में सफल नहीं होते हैं, हम वो हम नहीं कर पाते हैं. लेकिन यहाँ पे मैं मेंटल हेल्थ की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है वो सिर्फ मेंटल हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर के बारे में नहीं है. बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स, फिजिकल हेल्थ कंडीशंस मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली जुड़ी हुई है, ऐसा मॉडर्न रिसर्च बता रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मैं बात करूं, जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज है, फॉर एग्जांपल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, दूसरा सबसे बड़ा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज की लाइफ में हम सब या तो ह्यूमैनिटी कॉम्बैट कर रही है, कैंसर्स, वो भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स अबाउट physical health also, it's about the non-curable disorders that mankind suffering, it's about that also. So after this I want to put before you mental health and sustainable development goal. So जैसा कि हम सब जानते हैं, गोल नंबर 3 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, उसमें हेल्थ रिलेटेड एसडीजीज, जो कि हेल्थ रिलेटेड एसडीजीज है, उसमें 2 टारगेट डायरेक्टली मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज से जुड़ा हुआ है. कौन कौन से वो 2 टारगेट है? टारगेट 3.4 एंड टारगेट 3.5. क्योंकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं तब भी हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते. Target 3.4 says by 2030, reduce by 1/3 of premature mortality from non-communicable diseases through prevention and treatment, and promote mental health and well-being. And within this target, there are some indicators also, and the indicator 3.4.2 is a suicide rate, which is an indicator for health which is directly related to mental health. And target 3.5 requests that countries should strengthen the prevention and treatment of substance abuse, including narcotic drug abuse and harmful use of alcohol. So after that there are few concepts like mental health promotion and prevention. These are general things which I am talking with you all regarding to mental health. So for mental health promotion and prevention, interventions can be worked by identifying the individual, social, structural and structural determinants of mental health, intervening to reduce health and build resilience and establish supportive environments for mental health. I will skip these slides considering the time limit. Okay, so now if in general we see about the care and treatment of mental health, then there are many aspects of mental health treatment and mental health care. If I अगर मैं उसको समराइज करना चाहूँ तो सबसे पहला तो है कि हमारे पास कोई भी आता है तो हमारे आसपास में जो भी कम्युनिटी है उसमें जो भी लोग हैं उसको नॉन मेडिकल पर्सन कैसे केयर दे सकते हैं. तो नॉन मेडिकल पर्सन कैसे केयर दे सकते हैं, उसमें प्रमुख जो चीज़ें हैं वो ये है कि काउंसलिंग, दूसरा साइको सोशल फर्स्ट एड, तीसरा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी. ये 3 जो है ये मेनली नॉन मेडिकल पर्सन, साइकोलॉजिस्ट can give care, can give this type of care. मेडिकल केयर की मैं बात करूं
तो उसमें मेडिकल एस्पेक्ट आता है जो आज हम चर्चा नहीं करेंगे। मेडिकल एस्पेक्ट में मेनली जो आता है वो in addition to the non-medical treatment options, which I have already told to you, drugs and medications are the treatment options which are exercised by psychiatrist. और उसमें भी बहुत सारी थेरापी आती है जिसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये चार मुख्य तौर पे ये मेंटल हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट के मॉडलिटीज है। इसमें से एक जो मॉडलिटी है वो मैं आपके साथ बाद में लास्ट पार्ट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, हाउ टू गिव अ साइको सोशल फर्स्ट एड, जो कि हम सब लोग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस स्लाइड में एक और बात बता रहा है कि कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर। जब हम मेंटल हेल्थ के केयर और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक्सेसिबल भी होती है, एक्सेप्टेबल भी होती है देन इंस्टीट्यूशनल केयर। दूसरा, ये जो है वो नॉन हेल्थ सेटिंग्स में दी जा सकती है, सोशल सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा दी जा सकती है, सोशल साइंटिस्ट द्वारा दी जा सकती है, काउंसलर्स द्वारा दी जा सकती है, नॉन ट्रेन पर्सन्स के द्वारा भी दी जा सकती है। तो ये मुख्य तौर पे मेंटल हेल्थ के केयर एंड ट्रीटमेंट की समरी है, जिसमें से ब्रीफली मैंने आपको सब मॉडलिटीज बता दी। अब जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम ग्लोबल मेंटल हेल्थ मॉर्बिडिटी कितनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ओके, सो अब मॉर्बिडिटी क्या होता है? मॉर्बिडिटी एक मेडिकल शब्द है जो हेल्थ साइंस में यूज होता है। मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी, मोर्टालिटी डील्स विथ बीइंग अ स्टेट ऑफ मॉर्टल, मतलब मृत्यु से रिलेटेड है। मॉर्बिडिटी मतलब हम अगर अपने ऑप्टिमल हेल्थ में नहीं है, जैसे मैंने बताया फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग में नहीं है हम अपनी, तो हमारा मॉर्बिडिटी का स्टेटस है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ग्लोबल मेंटल हेल्थ मॉर्बिडिटी के फिगर्स है वो बहुत ही मतलब थॉट प्रोवोकिंग है। 1 in 8 people or 970 million people were living with a mental disorder. Anxiety and depressive disorders are among the most prevalent. Mental health conditions account for about 15% of global burden of diseases in young adults. WHO point out that some 8 lakh individuals died by suicide each year. And ये सब पूरा नहीं था, कोविड की वजह से लगभग 25% एंजाइटी और डिप्रेशन के इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं, ऐसा WHO का 2022 का एक रिसर्च बताता है। एंड दिस बर्डन हैज बीन इंक्रीज्ड ड्यू टू आइसोलेशन, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड हेल्थ सिस्टम ओवरलोड। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नियरली 75% ऑफ पीपल with mental health disorders in low and middle income countries receive no treatment at all, and there is a scarcity of mental health professionals also. Global median is 9 per 1 lakh people. और ये मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जब मैं बात कर रहा हूँ तब मैं मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल पर्सन की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। सो ये कुछ ग्लोबल स्टेटिस्टिक्स है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग, जनरल मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग मॉर्बिडिटी स्टेटिस्टिक्स इंडिया का भी मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा। सो देयर वाज अ नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 by NIMHANS, National Institute of Mental Health and Neurological Sciences, Bengaluru, which says 10.6% of adults in India suffer from some form of mental illness. Common mental disorders are depression, anxiety, and substance use, and it's nearly 14% of lifetime prevalence. And severe mental disorders in which we have to take psychiatrist care
is about 2%. There was a one ICMR study which estimated 200 million Indians experience mental health issues. There is a treatment gap of 70 to 92% of mental disorders in India. मतलब 70 से 92% ऑफ पीपल को ट्रीटमेंट नहीं मिलती है आज की तारीख में। सुसाइड रेट का एक स्टेटिस्टिक्स में आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेटेस्ट डेटा है, एनसीआरबी का डेटा अप्रैल 2024 में ही रिलीज हुआ है, लेकिन उन्होंने जो स्टडी किया था वो 2022 में स्टडी किया था, जिसमें वो लोग कहते हैं कि 12.4 पर 1 लाख पॉपुलेशन इज आवर सुसाइड रेट, नियरली इक्वल टू 13. 50 to 90% of individuals who die by suicide also suffer from mental illnesses such as depression, anxiety and bipolar disorders. So अगर कोई ये कहता है कि अरे ये तो जनरल सुसाइड रेट है, मेंटल हेल्थ का उसमें रोल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही बात है आपकी, लेकिन सिमिलरली स्टडीज ये भी कंक्लूड करती है कि आधे से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो सुसाइड करते हैं वो कहीं ना कहीं मेंटल इलनेसेस से सफर करते हैं। अब ये जो है वो मेंटल हेल्थ की जो मॉर्बिडिटी का जो लेवल है वो अर्बन एरिया में बहुत ज्यादा है, सिटी प्लेसेस में ज्यादा है, मेट्रोज में ज्यादा है। 13.5% ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड कंपेयर टू 6.9% इन रूरल एंड 4.3% इन नॉन अर्बन नॉन मेट्रो एरियाज। Recently, for the first time, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman included mental health in economic survey of 2023-24, and it directly connected mental health issues to the overall economic productivity of India. So, mental health का जो ये विषय है बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये जो मैंने मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात की है वो मैं जनरल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सेंट्रिक, हायर एजुकेशन सेंट्रिक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें एक जनरल मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स के बारे में भी पता होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज तक लिए हैं। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो है वो इस प्रकार से है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑफ 1982 जो एंश्योर करता था एक्सेस टू मिनिमम मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप्स। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2014, उसका विजन था मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना और ट्रीटमेंट करना मेंटल इलनेसेस की। एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी हेल्थ केयर के बारे में भी उसने बात की। देन इम्पोर्टेंट टाइमलाइन इज मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017। इस एक्ट ने ये किया है, इन्होंने मेंटल इलनेस से जो भी व्यक्ति सफर कर रहा है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया है, उसको क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर से उसका एक्सेस मिले, उसको एंश्योर करने का प्रयास किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी वो है कि डिक्रिमिनलाइज किया है अटेम्प्टेड सुसाइड को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में। और लास्ट जनरल इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टेलीमानस जो कि शॉर्ट फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स का, ये नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2022 में लॉन्च हुआ है। एक टोल फ्री हेल्पलाइन है, उसके 2 नंबर मैंने स्क्रीन पे शो किए हैं। 24/7 मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलता है। मोर देन 20 लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट करती है। बहुत ही बढ़िया हेल्पलाइन है। शायद मुझे जहाँ तक लगता है हम में से लगभग 10% से ज़्यादा लोगों ने इस तरह का हेल्पलाइन का यूज़ नहीं किया होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ जब भी आपको समय मिले
इस NEP सेंसिटाइजेशन के प्रोग्राम के बाद। आप लोग व्यक्तिगत तौर पे इस हेल्पलाइन को जरूर एक बार एक्सप्लोर करिएगा, अपने स्टूडेंट के साथ जरूर अपने इसको शेयर करिएगा। ये है इसी के साथ मेरा फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है, जो जनरल मेंटल हेल्थ केयर के बारे में मैं बोलना चाहता था। I think, sir, we have 40 more minutes for lecture and then 20 minutes for discussion, right? Yes, sir. Your session is till 6 o'clock. Okay, okay, no problem. Okay, thank you. So now we are going to the next stage, or I can say next part of our presentation, that is mental health, specifically related to educational institutes or higher educational institutions, and its global and general context. So in this section, I have included some global statistics, some general statistics related to HEIs and mental health. So we will briefly go through this, and we will spend more time on the third part of the our presentation, which is related to Indian context and NEP context of mental health. So when I am talking about global context in higher educational institutions, then in educational context, mental health is deeply tied to the learning. A student struggling with anxiety, stress, or low self-esteem cannot focus, participate, or grow. It is a growing concern, with many students facing challenges that impact their well-being and academic performances. In recent years, we have in my slides are visible? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और कोई प्रॉब्लम? ठीक। So it is a growing concern with many students facing challenges that impact their well-being and academic performances. In recent years, we have seen an alarming rise in mental health challenges among students. Anxiety, depression, bullying, peer pressure, loneliness, and the pressure to succeed at all costs. Students with higher level of well-being, which is often linked to mental health, report better overall health and higher academic performances. Similarly, an teacher battling burnout cannot inspire, mentor, or lead effectively. Teachers face overwhelming workloads, lack of recognition, limited mental health support, and often the burden of being caregivers, role models, and emotional anchors, often without adequate training. हमारे देश में भी कहीं ना कहीं यही स्थिति है। जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तब हमें मोटे तौर पे 3 मेन जो स्टेक होल्डर्स है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, उसको कंसीडर करना चाहिए: स्टूडेंट, academic staff and faculties, as well as non-academic staff. So हम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जब बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, तो इन सब बारे में बात करते हैं। हमारे टीचर या शिक्षक लोग, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम एकेडमिक फील्ड में आएंगे, थोड़ा वर्कलोड कम होगा, बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिलेगा, और मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ने बहुत सारी अच्छी अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बजाय ये टीचिंग की कैरियर अपॉर्चुनिटी चूज़ की होगी, और कैरियर बिल्ड करने के लिए स्टूडेंट का। लेकिन कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये सब प्रॉब्लम हम लोग इंडिया में भी फेस करते हैं।
अब मेंटल हेल्थ इश्यू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात है। जो पहला था, तो आगे मैंने जो स्टेटिस्टिक्स बताया था वो मेंटल हेल्थ इश्यूज इन जनरल क्या होता है उसके बारे में बात की। अब ये जो है सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ग्लोबल प्रिवेलेंस है। प्रिवेलेंस मतलब क्या चीज प्रिवेल करती है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में या एपिडेमियोलॉजी में दो कंसेप्ट आते हैं, इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस। इंसिडेंस मतलब नया होना, प्रिवेलेंस मतलब नया प्लस पुराना, मतलब जो चलता रहता है, दोनों आता है। तो mental health challenges among HEI students have emerged as a significant concern across various regions as evidenced by research findings. The World Health, the WHO, World Mental Health International College Student Project applied in 8 countries found that over a third of students reported mental health disorder. Globally, 35% जितने स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। In South Africa, 21 to 24.5% of students experience mental health disorders. बांग्लादेश में 18%, चिली में 45% of student, पाकिस्तान में, यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 60% ऑफ स्टूडेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं। दूसरा, ये उसमें से जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से सफर हो रहे हैं, उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसा बताते हैं कि हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से अफेक्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। दूसरा, ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ट्रेंड है वो राइजिंग ट्रेंड है। 2014 से लेकर 2023 की बात करें, वन डिकेड में 22% से 36% तक एंजाइटी का लेवल बढ़ गया है। डिप्रेशन के सिम्टम 21% से 41% तक पहुंच गए इन यूनाइटेड स्टेट्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंडिया में लार्जर स्टडीज नहीं हुई है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसा बताया मैं यहाँ ग्लोबल एज वेल एज जनरल आस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया के स्टेटिस्टिक को थर्ड पार्ट में शो करूंगा आपके सामने। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या एक चीज ये आता है मेंटल हेल्थ के विषय में, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट फेस करते हैं। जब स्टूडेंट एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है, तब भी वो कहीं ना कहीं उस ट्रांजिशनिंग की वजह से भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को फेस करता है। चाइना में इसके ऊपर एक स्टडी हुई है। 37% ऑफ स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया है कि उनको डिप्रेशन हो गया क्योंकि उन्होंने एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से दूसरे HEI में शिफ्ट किया। कोविड के बारे में हमें पता है, एक जनरली भी जो मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ा है, तो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कोविड ने तो कंडीशंस एग्जासर्बेट कर दिए। हम सब ने देखा है कि किस तरह से कोविड 2019 के दौरान एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स ने किस तरह से पढ़ा है, किस तरह से ऑनलाइन मोड में पढ़ा है, किस तरह से टेली एजुकेशन के मोड में पढ़ा है। और शायद ये कोविड की देन है कि हम जैसे फैकल्टी मेंबर्स को भी ये जो HRDC में या मदन मोहन मालवीय टीचर ट्रेनिंग सेंटर में जो ऑनलाइन मोड में जो ये प्रोग्राम्स करने पड़ रहे हैं, वो भी कोविड के बाद ज़्यादा हुआ है। तो इसका भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट है। सो चैलेंजेस विथ स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ। अब जो ये स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ है, ये कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, उसका रिफ्लेक्शन। तो कौन से वैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज हो सकते हैं? सो द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंगली सीन एज अ सिम्टम ऑफ ब्रॉडर स्ट्रक्चरल चैलेंजेस विद इन हायर एजुकेशनल सिस्टम्स। कौन सी? तो के भाई, various factors linked to educational policies and pedagogical approaches contribute to this trend. High stakes exams, for instance,
have been identified as a significant source of psychological distress. और इसीलिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हमें पेडागोजिकल अप्रोचेस को चेंज करने के बारे में बताती है, वो कहीं ना कहीं इसलिए बताती है, और एग्ज़ाम को भी डिवाइड करके लेने के बारे में बताती है। इवन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने अभी ट्रेंड शुरू किया है, स्कूल्स में भी ट्रेंड शुरू हुआ है, मंथली एग्ज़ाम, वीकली एग्ज़ाम्स लेने का भी ट्रेंड शुरू हुआ है, सरप्राइज एग्ज़ाम लेने का भी ट्रेंड शुरू हुआ है। सो ये एक स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो कि स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। दूसरा है इमेंस प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन एंट्रेंस एग्जाम्स। अगर हम हमारे देश की भी बात करें तो CUET, नेट, JRF ऐसी बहुत सारी एग्जामिनेशंस जो कि टॉप यूनिवर्सिटीज़, टॉप NIRF रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में, टॉप QS रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमारे स्टूडेंट्स जो एफर्ट करते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। दूसरा एक प्रेशर रहता है हमेशा पीयर कंपैरिजन का। पीयर दूसरों से कंपेयर करना, उसका नेट JRF निकल गया, मेरा नहीं निकला है, उसको PhD में एडमिशन मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। मास्टर्स के स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की प्रॉब्लम रहती है CUET PG क्रैक करना। तो ये सब जो है वो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। दूसरा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है या दूसरा इंपॉर्टेंट चैलेंज है, वो है insufficient institutional capacity to provide adequate mental health. ग्लोबली भी अगर हम देखें तो मेंटल हेल्थ केयर प्रोविजंस ऑन कैंपसेस आर insufficient, and even when services are available, students often underutilize them due to cultural factors, perceived quality of care, financial barriers, and limited access to mental health specialists. Issues such as long wait time, insufficient resource relative to demand further compound the problem. And negative past experiences with mental health care can discourage future help-seeking behavior, underscoring the need of highly trained professionals. ग्लोबली भी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बहुत कम है। यही सिचुएशन लगभग भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस में प्रिवेल करती है। हम सब अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, हम सब फैकल्टी है या तो PhD स्कॉलर्स भी होंगे। हम सबको पता है कि हम जहाँ पे पढ़ाते हैं, हम जहाँ पे सर्व करते हैं, उस इंस्टीट्यूशंस में मेंटल हेल्थ केयर की कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यही ग्लोबल पिक्चर है, यही नेशनल पिक्चर है। और इसमें मेन जो बात है, काउंसिलर नहीं होना, काउंसिलर होना तो ट्रेन काउंसिलर नहीं होना, किसी का भी बैठ जाना, मतलब जो कि स्किल्ड नहीं है, किसी का भी बैठ जाना, मतलब मैं क्वालिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग के एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। वेल ट्रेन लोगों का ना होना, ये सब बहुत ही बड़े एस्पेक्ट है जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल बैरियर्स टू एक्सेस मेंटल हेल्थ केयर, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ग्लोबली भी एक सिग्निफिकेंट बैरियर है टू एक्सेस मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन कैंपसेस। फाइनेंशियल सपोर्ट्स for student mental health services varies widely across institutions, with some HEIs fully or partially covering the cost, while others offer little or to no financial assistance. A study in US reveals that 21% of students had been impeded from accessing mental health services due to their cost. यूनाइटेड स्टेट्स में भी यही हाल है। यूनाइटेड स्टेट्स का भी हेल्थ केयर कहीं हमसे बेटर नहीं है इन सब मामलों में। ठीक है, अलग अलग प्रकार की स्टडीज अलग अलग प्रकार की चीज़ें बताती होगी, लेकिन ग्लोबल पिक्चर भी कहीं ना कहीं यही है। फंड क्रंच, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ना होना। हम में से जो भी लोग अलग अलग संस्थान में से आते हैं, हमारे में से कई संस्थानों में भी ऐसा भी होगा
कि जनरल हेल्थ केयर ही नहीं होगी, मेंटल हेल्थ केयर तो बात की बात है। तो जनरल हेल्थ और फ्री एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड होनी चाहिए, वो बहुत सारे संस्थानों में आज भी देश में नहीं है, हमारे देश में भी नहीं है। तो ये फाइनेंशियल बैरियर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है मेंटल हेल्थ के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अक्रॉस ग्लोब एज वेल एज इन इंडिया। कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन बैरियर्स to accessing mental health care. So mental health remains highly stigmatized in many countries and cultural contexts more so than physical health. The stigmatization is often exacerbated by the absence or limited reach of awareness raising initiatives aimed at dismantling stereotypes and promoting mental health services. Students often lack adequate mental health literacy, making it difficult to recognize symptoms and seek assistance. The process for obtaining help is frequently unclear, separate from other student support services offices, further discouraging students from utilizing available resources. As a result, students may feel compelled to manage mental health challenges on their own, often to embrace to seek help, leading to underutilization of mental health resources in higher educational institutions. इसमें अगर मेन चीज की बात करें, स्टिग्मेटाइजेशन सबसे बड़े मेट्रो मतलब जो प्रमुख मेट्रो सिटीज है इंडिया के, उसमें भी इवन दिल्ली में भी मैं रहता हूँ, लगभग 10 साल से मैं हूँ, एकेडमिक से जुड़ा हुआ हूँ। आज भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बहुत ही बड़ा मेंटल स्टिग्मा प्रिवेल करता है। दूसरा, कोई भी तरह का अवेयरनेस रेजिंग एक्टिविटीज नहीं होती है। प्रोविजंस तो है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इन प्रैक्टिस ये सब का अभाव होता है। दूसरा, उनको जो है इसके चलते अपने आप ही वो इंटरनेट की हेल्प लेते हैं या नॉन टेक्निकल हेल्प लेते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जो भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मेंटल हेल्थ के रिलेटेड। और एब्सेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन हायर एजुकेशनल पॉलिसीज, ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रही है कि बहुत सारे देश में नेशनल हायर एजुकेशनल पॉलिसीज है वो एक्सप्लिसिटली मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को एड्रेस करने में फेल होती है। Among 130 countries included in higher educational policy observatory that have adopted national plans to steer their higher educational systems, only 1 out of 5 include objectives to promote student well-being in their plan. The proportion varies based on income levels. Among low-income countries, none of the higher educational plans included such objective, while higher-income countries, a quarter of countries included it. This suggests that governments worldwide do not consider student well-being is of a primary concern within their mandates. Fortunately, इंडिया में स्थिति बहुत ही बेहतर है। हमारे देश में हायर एजुकेशनल की पॉलिसीज में मेंटल हेल्थ को अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो बहुत ही फोकस के साथ, बहुत ही प्रायोरिटी के साथ इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास किया गया है पॉलिसी लेवल पे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कुछ जनरल रिकमेंडेशंस है जो हम लोगों को भी लागू पड़ते हैं, इंडियन सिचुएशंस में भी लागू पड़ते हैं कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेंटल हेल्थ को अगर सपोर्ट करना है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहला तो यह है कि प्रोवाइड फ्री ऑन कैंपस मेंटल हेल्थ सर्विस। HEI should ensure that all students have access to free mental health services, particularly when public services are insufficient or inaccessible, जो कि लगभग सभी देशों में होता है। और जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पे भी स्पेशलाइज केयर मिलने में भी तो बहुत सारा टाइम लग जाता है।
The student to counselor ratio should be structured to provide timely and personalized support. The HEI should ensure that costs covered by tuition or other funding sources without additional fees per usage. These services should be integrated into the student affairs offices, जैसा कि हमारे देश में डीन ऑफ स्टूडेंट ऑफिसेस होते हैं, for HEIs that have them as a part of holistic approach supporting students. Government should support public institutions in offering these services through dedicated funding. तो कहता यह है कि फ्री ऑन कैंपस मेंटल हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, स्टूडेंट काउंसिलर रेशियो होना चाहिए, कोई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट के लिए इस मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए, और गवर्नमेंट फंडिंग भी बढ़ानी चाहिए. दूसरा सजेशन या रिकमेंडेशन ये है कि डाइवर्सिफाइड मॉडलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए मेंटल हेल्थ केयर के लिए. कहता है कि टू मीट डाइवर्स नीड and reduce access barriers, mental health care should be available through the multiple channels. What are the multiple channels? एक तो in one, that is in person consultation, in person counseling through counselors available in health centers of the higher educational institutions, telephonic consultations. Online consultation should also be available via platforms such as social media or dedicated apps. Confidentiality and accessibility in students' preferred language should be prioritized. The provision of 24/7 crisis lines, particularly for suicide prevention and other severe psychological emergencies, should be considered. Counseling services, whether individual or group-based, must be culturally sensitive, acknowledging the diversity and intersectionality of the student body, where these services are government funded and serve the general population. HEI should ensure students are made aware of these resources. अब यहाँ पे जो भी मॉडलिटीज मेंशन की है ना, वो कहीं ना कहीं हमने भारत देश में तीन चीज़ों के जरिए कवर की है. एक हमारा है जो टेलीमानस, जो कि मैंने आपको बताया, जो कि टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज है, टेली मेंटल हेल्थ फैसिलिटी है. दूसरा है ई संजीवनी सर्विसेज. शायद आप लोगों को ध्यान में ना हो तो आप लोग इस बार इस सर्विसेज के बारे में भी राइट डाउन कर सकते हैं, एज वेल एज जब भी आपको समय मिले तो एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं इस सर्विसेज को. ई संजीवनी जो कि ऑनलाइन हेल्थ काउंसलिंग की सर्विस होती है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक्सपर्ट्स की हम लोगों को सेवा मिलती है. Then the next recommendation is ensure adequate qualification for mental health professionals. Government should regulate minimum qualifications for mental health professionals, promote faculty training and academic adaptations is the another recommendation. Establish clear policies for mental health leave. ये बड़ा important aspect है. ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी लागू पड़ता है और फैकल्टीज को भी लागू पड़ता है और बाकी स्टाफ को भी लागू पड़ता है, जो कि मेरे ध्यान में ऐसा है कि भारत में अब तक इस तरह का प्रोविज़न नहीं है. उसको एक जनरल लीव के रूल में ही कवर होता है. तो स्पेसिफिक मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए लीव का प्रोविज़न होना चाहिए, और फैकल्टी के लिए भी इस तरह का मेडिकल लीव या तो कैजुअल लीव या तो ये रख सके इसका प्रोविज़न होना चाहिए. एक चीज़ इसमें अच्छी ये है कि एनईपी ने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ये जो ऑप्शन प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को कि आप कभी भी अपना जो स्टडी है वो एक एनसीआरएफ लेवल के बाद बंद कर सकते हैं, और कभी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो स्टॉप कर सकते हैं, एंड देन बाद में जब भी आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन हो तब आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि
कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को और सुसाइड जैसी सिचुएशंस को बहुत ही कम करता है। स्टिग्मा कम करने के लिए कैंपेन करनी चाहिए और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दूसरा एक सबसे थोड़ा मैं स्पीडीली जा रहा हूँ क्योंकि समय को देखते हुए, थोड़ा एक लास्ट वाला जो रिकमेंडेशन है या लास्ट वाला जो एक चीज़ जो हम लोगों को करनी चाहिए वो ये है कि जो हम लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं करते जनरली, हम लोगों के यहाँ क्या है, अगर हेल्थ सेंटर या हेल्थ फैसिलिटी है अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो वहाँ पे हमारे पास डिजीज़ के तो डेटा कलेक्ट होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंटल हेल्थ कंडीशंस के डेटा कलेक्ट नहीं होते हैं। तो ये भी जो है स्टूडेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट करते हुए इस तरह का डेटा मॉनिटर करना चाहिए और उसका एनालिसिस करके उस पर भी काम करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है वो इस का सेकंड पार्ट जो है इस लेक्चर का वो पूरा होता है, जो कि कुछ ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स था, कुछ जनरल मेंटल हेल्थ रिकमेंडेशंस थी, जनरल मेंटल हेल्थ इश्यूज थे जो कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या एजुकेशनल स्पेसिस में लोगों को, स्टूडेंट्स को या तो स्टेक होल्डर्स को फेस करने पड़ते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर इज मेंटल हेल्थ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की ही बात करेंगे, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टेक होल्डर के मेंटल हेल्थ की बात करेंगे, जनरल मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इसको हम तकरीबन 15 मिनट में कवर करेंगे और फिर 15 से 20 मिनट में कवर करेंगे और 10 से 15 मिनट हम डिस्कशन के लिए रखेंगे। सो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हमने देखा, ग्लोबल डेटा देखा, अब जरा हम स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ का इंडिया का डेटा भी देख लेते हैं। सो रिगार्डिंग सुसाइडल आइडिएशन एंड अटेम्प्ट्स, जैसा कि मैंने कहा सुसाइडल आइडिएशन, सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, सुसाइड एक इंडिकेटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। तो इसके बारे में there is a one survey of 8542 university students which was conducted by University of Melbourne and Nimhans collectively, that shows that the survey shows that over 12% experience suicidal thoughts in the past year। 12% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइडल थॉट को एक्सपीरियंस किया है। भारत की बात कर रहा हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूशंस की बात। 5% attempted suicides with concerning ratio of 1 in 3 ideators acting on those thoughts। जिसको भी सुसाइड का विचार आया उसमें से वैसे 3 लोगों में से एक ने सुसाइड करने का प्रयास किया, एक्शन किया अपने थॉट पे। ये भारत देश का स्टेटिस्टिक, ये एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ था, अभी रिसेंट स्टडी है, 8540 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे हुआ था। लार्ज स्केल सर्वे जनरली इंडिया में अभी कंडक्ट नहीं हुआ है जैसे मैंने पहले बताया, इसलिए भी इंडियन डेटा जो है वो थोड़ा कम है, जो भी है वो कम है, एज वेल एज बहुत ही कम ऑनलाइन अवेलेबल है और इस पर स्टडी की आवश्यकता है। एक IC3 इंस्टीट्यूट रिपोर्ट था 2024 का, which tells that student suicides are increasing at 4% annually, double the national suicide rate of 2%। नॉर्मल सुसाइड रेट 2% से बढ़ रहा है, अपना स्टूडेंट का सुसाइड रेट 4% से बढ़ रहा है। NCRB बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, which reveals that a rise from 6654 suicides in 2013 to 13044 in 2020।
6,654 सुसाइड 2013 में हुए थे, 13,044 सुसाइड 2022 में हुए, 64% राइज हुआ है सुसाइड के डेटा में। एनसीआरबी का डेटा है, ऑफिशियल डेटा है। और इसमें से ये जो 13044 नंबर है जनरल सुसाइड का, उसमें से 10% स्टूडेंट जो है सुसाइड करते हैं। लगभग 1300-1400 स्टूडेंट जो है सुसाइड करता है एस एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, एज पर 2022 डेटा। देन दिस situation of mental health, the situation of students mental health is very worst in elite institutions, because statistics say that between 2019 to 2023, 98 suicides were reported in IITs, NITs and IIMs, with IITs alone accounting for 39, the highest being IIT Madras. A survey in IIT found that 61% of students cited academic stress as the main trigger. तो हम सब लोगों को आज सोचना पड़ेगा कि अगर एकेडमिक स्ट्रेस की वजह से सुसाइड हो रहा है तो हम लोगों का रोल कितना बड़ा महत्वपूर्ण है इसको प्रिवेंट करने में। Then there is another data that shows that over 60% of Delhi adolescents shows signs of depression, 20% are clinically sleep deprived. Among medical graduates, there is a study by National Medical Commission. 40% report smartphone addiction linked to anxiety and sleep problems. And the worst part is, in India, family and societal pressure further fuel this distress. Many students are burdened with parental expectations, where failure seen as shameful, increasing the risk of mental health struggle. In India, as we discussed, mental health support remains inadequate. How it remains inadequate? So, only 41% of Indian students feel comfortable in seeking help, according to the latest UNICEF study of 2022. IITs and NITs have a low counselor to student ratio, leaving students without psychological support. जहाँ पे सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है वहाँ पे काउंसलर टू स्टूडेंट रेशियो, वहाँ पे भी काउंसलर टू स्टूडेंट रेशियो इनफ नहीं है, जितना एडवोकेटेड है उतना नहीं। एंड गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है एक मनोदर्पण करके। ये मनोदर्पण एक इनिशिएटिव रहा जब कोविड के समय में एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शुरू किया था, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जितने भी स्टेक होल्डर है उन सभी स्टेक होल्डर का मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग कोविड एज वेल एज बियॉन्ड कोविड अच्छा करने के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया था, वो भी लार्जली रिमेन इनइफेक्टिव। तो ये जो है वो इंडियन स्टैटिस्टिक्स है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेंटल हेल्थ का। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज 2022 जिसके सेंसिटाइजेशन और ओरिएंटेशन के बारे के लिए आप शायद आप सब इकट्ठा हुए हैं, तो मैंने एनईपी को भी बहुत थॉरली चेक किया। एनईपी भी बहुत सारी जगह पे मेंटल हेल्थ का सीधा जिक्र करता है। मैं इसको थोड़ा स्किप करूंगा क्योंकि हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है, थोड़ा हम डिस्कस करेंगे बाद में। चैप्टर 2 अंडर पैरा 2.9 एनईपी में मेंशन है चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल, हिंस न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ वहाँ पे ऑफ चिल्ड्रन विल बी एड्रेस्ड, वहाँ पे भी मेंटल हेल्थ का बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन है। दूसरा इन चैप्टर 4 करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, एंजॉयबल एंड एंगेजिंग। within that chapter under para 4.28 basic training in mental health, basic training in health including preventive health, mental health, good nutrition, personal hygiene, public hygiene, personal and public hygiene, disaster response and first aid will also be included in the curriculum, as well as scientific explanation of the detrimental and damaging effects of alcohol, tobacco and other drugs. इसके अलावा भी
नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज उसके वेल बीइंग के बारे में बहुत ही बात करती है, जो कि मेंटल हेल्थ का ही एक कंपोनेंट है। वेल बीइंग एंड मेंटल हेल्थ बहुत ही जुड़े हुए हैं। विजन जो है पॉलिसी का, उसमें ही वो ग्लोबल वेलबींग की बात करता है और हम सबको ग्लोबल वेलबींग के लिए एफर्ट करने की बात करता है। पार्ट 1 स्कूल एजुकेशन है, उसमें भी वो वेलबींग के बारे में बात करता है। 4.8 में वो स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन के बारे में बात करता है, जिसमें वो बात करता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग प्रमोट करके, एज वेल एज कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी। वहाँ पे भी वो मेंटल हेल्थ के बारे में बात करता है। 4.44 पैरा हेल्थ एंड वेलबींग क्लब या योगा क्लब के बारे में बात करता है, एनईपी का डॉक्यूमेंट। 12.1 पैरा भी साइकोसोशल वेलबींग के बारे में बात करता है। 12.4 पैरा 12.4 भी जो है वो हाई क्वालिटी सपोर्ट सेंटर और एडिक्वेट फंड की एडिक्वेट रिसोर्सेज के बारे में बात करता है। एंड वो ये कहता है कि देयर विल बी अ प्रोफेशनल एकेडमिक एंड कैरियर काउंसलिंग अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स एज वेल एज काउंसलर टू एंश्योर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। 20.2 भी बात करता है, 20.3 भी बात करता है, 26.3 भी बात करता है। इन सबके अलावा भी एनईपी जो है वो अपने आप में बहुत ही होलिस्टिक पॉलिसी है, जो कि बात करती है कि भैया एजुकेशन जो है वो एकेडमिक एक्सेलेंस के लिए नहीं है, बट ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए है। बात करती है कि काउंसलर्स होने चाहिए, वेलनेस सेंटर होने चाहिए। बात करती है कि करिकुलम को हमें फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, क्रिएटिव बनाना पड़ेगा और स्ट्रेस फ्री बनाना पड़ेगा। टीचर्स ट्रेनिंग को इंक्लूड करने की बात करती है, मेंटल हेल्थ की बात करती है, एम्पैथी जैसे गुणों को इंक्लूड करने की बात करती है, वोकेशनल एजुकेशन, लाइफ स्किल एंड सोशल इमोशनल लर्निंग की बात करती है। इन सब के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात करती है। एंड ये सब तो लिखा है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, लेकिन बीइंग अ फैकल्टी हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस, व्हाट नीड्स टू बी डन, व्हाट वी कैन डू? So we can create a safe spaces in school where students feel seen, heard and supported. Train teachers as a emotional first responders, equipping them as a tools to recognize signs of distress and respond with empathy. Support your student. We can support our students. We can send positive messages to students. We can connect with our students. We can extend emotional support if needed. We can establish peer support programs. We can engage parents. We can use assessment wisely. ऐसा ना हो कि हम जो मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम निकाल रहे हैं उसमें हम हमारी इंस्टीट्यूशंस का या हमारे इंस्टीट्यूट का लेवल बहुत अच्छा हो, इसलिए बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पेपर सेट करें या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सेट करें। एक नॉर्मल जो वेटेज होना चाहिए उसको हम रखें, ताकि असेसमेंट जो है वो उनके लिए प्रेशर ना बने। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, टीचर्स नीड सपोर्ट टू। जैसे ही हम स्टूडेंट के वेलनेस की बात करते हैं, टीचर के वेलबींग को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। मेंटरशिप के जरिए वर्कलोड मैनेजेबल देना पड़ेगा। कई बार हमें लगता है कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन शायद आप लोगों ने इसको इस दृष्टि से देखा है कि नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी होना ही अपने आप में एक स्ट्रेस को जन्म देता है, क्योंकि हमारा एकेडमिक लाइफ में जनरली स्पीकिंग वर्क और पर्सनल लाइफ का, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ का क्लियर कट डिवीज़न नहीं होता है। कल आपका लेक्चर है, रात को भी आप लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए रहोगे, या कुछ आपका प्रेजेंटेशन है, कुछ आपका एकेडमिक प्रोजेक्ट है, आप पीआई है, को पीआई है, बहुत सारा वर्कलोड रहता है। वो आप कोई 9 to 5 की तरह जॉब की तरह नहीं करते हैं हम लोग, उसको हम थ्रू आउट 24 आवर्स जब भी हमें समय मिलता है तब करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस सेपरेट नहीं रह पाता है और हम बहुत ही सफ़र करते हैं उस चीज़ से। बस within 5 minutes I will conclude my lecture, and we will
open for we will open the floor for discussion. So यहाँ पे मैंने एक चीज़ रखा है कि बीइंग अ फैकल्टी, जैसा मैंने आगे की स्लाइड में बताया वो तो हम कर ही सकते हैं। इंडिविजुअल फैकल्टी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, तो एक आप लोग इसको खाली लिख लीजिए अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो। बहुत सारे देशों में फैकल्टीज एंटाइटल्ड है या तो ट्रेन्ड है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने के लिए। तो हमारे देश में भी हम लोगों को फैकल्टीज को ट्रेन करना चाहिए साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने के लिए। जो पब्लिक हेल्थ में ट्रेन नहीं है, जो मेंटल हेल्थ में ट्रेन नहीं है, वैसे सभी फैकल्टी को हम ट्रेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल अप्रोचेस है जो हम टीचर्स को बड़े आसानी से हम उसको सिखा सकते हैं। ये सब अप्रोच, एक अप्रोच मैंने लिया है, आसिस्ट अप्रोच है। approach the individual, stabilize their emotions, serve their need, inform them the facts, support their story and turn them towards their services. मैंने जानबूझ के अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स बाद में रखे हैं क्योंकि मेरा मकसद क्लिनिकली आप लोगों को वो करना नहीं था, अवेयर करना या सेंसिटाइज करना नहीं था मेंटल हेल्थ के बारे में। बट ये कुछ अर्ली साइंस एंड सिम्टम, अर्ली साइंस है जो हम अगर ऑब्जर्व करें तो हम लोगों को तुरंत ही या तो खुद के लिए या स्टूडेंट के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसा सबसे इम्पोर्टेंट है कि विड्रॉइंग फ्रॉम पीपल और एक्टिविटीज वी वुड नॉर्मली डू टू एंजॉय, स्लीपिंग टू मच, ईटिंग टू मच और टू लिटल, फीलिंग एज इफ नथिंग मैटर्स लाइक नमनेस, कंसिस्टेंटली लो एनर्जी अगर रहती हो, अल्कोहल या निकोटीन अगर कोई ले रहा है जो नॉर्मली ले रहा है उससे ज़्यादा अगर हो जाता है, कंफ्यूज्ड रहता है, एक बहुत ही हॉलमार्क सिम्टम है कि हम हमारे जो रूटीन टास्क है ना, नॉर्मल टास्क, स्टैंडर्ड टास्क, वो भी हम नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डेली जो एकेडमिक शेड्यूल है उसको भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते, या जो भी हमारा नॉर्मल हो शेड्यूल उसको नहीं कर पाते। तो ये सब जो है उसके बाद हियरिंग वॉइसेस, डिल्यूजन्स, परसिस्टेंट थॉट्स और मेमोरीज अगर हम सबको होता है तो इसको हमें अर्ली साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे लेना चाहिए। ये सब इमोशनल रिएक्शन है, ये सब कॉग्निटिव रिएक्शन है जिसको हम इस सब की हम ट्रेनिंग दे सकते हैं फैकल्टीज़ को। ये सब फिजिकल रिएक्शंस है। फिजिकल रिएक्शंस में जैसे होता है ना कि बॉडी एक हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ गया है, स्लीपिंग में डिफिकल्टी हो रही है, इंटरपर्सनल रिलेशंस है, उस सब के बारे में भी हमें बात करना चाहिए। भारत देश की हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से कुछ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने बहुत अच्छे मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं, जिसमें आईआईटी हैदराबाद का सनसेट बड़ी एंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें वो लोग स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको मेंटर बनाते हैं, जो कि नए आने वाले स्टूडेंट को सोशल, एकेडमिक और इमोशनल सराउंडिंग से फेमिलियर होने के में हेल्प करते हैं। और इस प्रोग्राम ने 85% इम्प्रूवमेंट दिखाया है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के मेंटल हेल्थ में। आईआईटी मद्रास में कुशल करके प्रोग्राम है, कुशल बी हैप्पी, आई थिंक बी हैप्पी प्रोग्राम है, जिसमें ग्रुप काउंसलिंग, योगा, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस वगैरह करके उन्होंने स्टूडेंट्स का एज वेल एज फैकल्टीज का हेल्थ एंड वेलबींग इम्प्रूव किया है। आईआईटी बॉम्बे में हिएलो प्रोग्राम है जिसमें काउंसलिंग और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें इमोशनल वेलबींग के बारे में बात होती है। इस तरह से देश की कई सारी संस्थाओं में प्रोग्राम चलता है, जैसे जीवानी मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है केरला का, जिसमें काउंसलिंग के प्रोग्राम चलते रहते हैं। लगभग 60,000 जितने स्टूडेंट्स को ये लोग पहुंचे हैं कॉलेज में जाके, और एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में बात किया है। बस इसी के साथ मेरा जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मैं कुछ कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स दिखा के मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। जैसे ये आप देखेंगे, आप विजिबल है ना मेरा स्क्रीन? हेलो? Yes, sir. ये 2020 का यूजीसी का एक मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए एक
नोटिफिकेशन था, आप अगर चाहे तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यूजीसी ने 2022 में एक गाइडलाइन दी थी, गाइडलाइन फॉर प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्पोर्ट्स, स्टूडेंट हेल्थ, वेलफेयर, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वेलबींग एट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत बड़ी गाइडलाइन है, हम सबको पढ़नी चाहिए एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज तो हम लोगों ने पढ़ी ही होगी। उसके बाद हमारा जो फैकल्टीज का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और फैकल्टी वाला जो 2018 का गैजेट नोटिफिकेशन है, उसमें भी बताया है कि टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए, स्टूडेंट को कैसे बिहेव करना चाहिए, बाकी सब स्टेक होल्डर को कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सब जो है, ये है यूजीसी का ग्रीवेंस रिड्रेशल का रेगुलेशन है, 2023 का गैजेट नोटिफिकेशन है। ये अभी यूजीसी ने दिव्यांग और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के लिए गाइडलाइन निकाली थी, उसके बारे में बात है, जिसमें सिटिंग प्रेफरेंस, ब्रेक, टाइम मैनेजमेंट और फीडबैक के बारे में बात की थी। ये मनोदर्पण करके जो इनिशिएटिव है उसके बारे में है, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे अभी भी उपलब्ध है। नेशनल मेंटल हेल्थ टास्क फोर्स एनएमसी ने कंस्टिट्यूट की थी मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ये है। कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स है। So with this, I would like to conclude that it is crucial to recognize the mental health intersects with various aspects of life, including education, employment, housing, and social participation. A person's mental well-being impacts their ability to exercise other rights, such as the right to education and the right to work. When mental health is protected, individuals are better equipped to engage meaningfully in society. Though unmeasured, the social and economic impact of mental health is huge. Just as the right to physical health is a fundamental aspect of human dignity, the right of mental health is equally indispensable. Despite these realities, mental health continues to carry a stigma. It is rarely addressed openly, often misunderstood, and almost always under prioritized. NEP is not just a policy, but it's a roadmap to create a nurturing environment where children can flourish, not just academically, but emotionally also. Policies are only as effective as their implementation, so we all have the responsibility. So we all have to do collective efforts to translate these principles into reality. As an educator and policy implementers, we are more than just professionals. We are the caretakers of young minds, and healthy mind is the foundation of healthy society. Let's normalize the conversation around mental health. Let's replace judgment with compassion, silence with support, and pressure with purpose. Let's work together to ensure mental health well-being. That mental health well-being becomes not just a talking point, but living practice in every school, higher educational institutions, every classroom, and every student's journey. Let us not prepare children only for the exams, but also for the life. And life begins with a healthy mind. With this, I would like to conclude my lecture, and I have stopped the screen. Thank you, sir. Open for It was discussion. an informative session, and we are all happy that a session required for everyone, like mental health sessions were included in this FDP. And participants, the platform is for you. If you have any queries, you can put forward. दो ही मतलब हो सकता है, या तो कोई किसी को समझ में नहीं आया, या तो सब कुछ समझ में आ गया. No, it's not our area, no, sir. So I think they have all heard But everything. it's very important, and we Yes, cannot yes. say that it's not our area. It's there in almost all the documents of UGC, almost all the documents of Ministry of Higher Education, and it's also important for our life as well as daily well-being. Yes. Okay, yes. good evening. Good evening, Dr. Sita Lakshmi. Namaskar, Dr. Good evening, ma'am. Namaste, ma'am. How is everybody? I hope everybody enjoyed the session a lot. Yes, ma'am. Surely, we are grateful to you because you have added a session like this in the FDP, which is required for everyone.
Yes, certainly. So, Dr. Ma'am, Nikunj, मैम आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम, मतलब मैं जितने भी एनईपी के ओरिएंटेशन एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स देखता हूँ, आपका जो ये इनिशिएटिव है सबसे पहला इनिशिएटिव है शायद, कि जो स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ टॉपिक के बारे में लोगों को सेंसिटाइज कर रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और माय सिंसियर थैंक्स टू यू टू my इंक्लूड pleasure. दिस सेशन। My pleasure. Actually, मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो इसमें बड़ा important एक थीम है ना, जो जी। कि कहता है कि integrated development of the body, mind and soul. तो उसमें मुझे लगा कि without mental hygiene, how can there be development of the mind? Yes. तो और बड़ा burning MMTTP as a program, as a scheme, has a great emphasis on particularly mental health, mental hygiene, and student counseling, etc. So we are very fortunate that from the Jawaharlal Nehru University we have Thank you. somebody, a good speaker, Dr. Nikunj. He found time for us. और मैंने आपका पूरा लेक्चर सुना. I was logged थैंक यू मैम। और मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा, लेकिन मैंने फायदा उठाया आपके पूरे लेक्चर से. क्योंकि मेरा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ जेएनयू में थोड़ा इनफॉर्मली अगर बताऊँ तो, जब मैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक हेल्थ सर्विसेज है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर रहा 3 साल के लिए। तो हम बिलीव नहीं कर सकते, इतना मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से हमारे स्टूडेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, एंड वो कहीं जाके बता भी नहीं सकते अपनी बात, इतनी सीवियर सिचुएशन है। जब तक हम ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करेंगे हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तब तक मैं जस्ट उसके इंडिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ कि सुसाइड कौन कर रहा है, कितने सुसाइड हो रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस। भाई डेली वेलबींग है, डेली प्रोडक्टिविटी है, डेली एकेडमिक आउटपुट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस सब भी बहुत प्रभावित होता है मेंटल। और इससे पहले भी जब मैं मेडिकल ऑफिसर था, तब स्कूल के स्टूडेंट्स को हम जब चेक करते थे, या हमें लगता है ना कई बार कि विलेज प्लेसेस पे इतना नहीं होता है, बट जो डेटा भी यही कहता है विलेज प्लेसेस पे कम होता है मेंटल हेल्थ इश्यूज, बट ऐसा नहीं है। इवन विलेजेस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, और खासकर ये इस एज ग्रुप में जहाँ रिलेशनशिप इश्यूज रहते हैं, एकेडमिक प्रेशर्स रहता है, कुछ करने का फैमिली प्रेशर्स रहता है, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहने का प्रेशर होता है, तो ये सब मिलके एक मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देता है। मैं यहाँ पे अलीगढ़ में हूँ, हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी, हमारी पब्लिक मेडिकल कॉलेज भी है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पे। तो मेरी बेटी एमबीबीएस थर्ड ईयर कर रही है। जब उनकी साइकियाट्री में पोस्टिंग लगती थी, तो वो आके जो भी केसेस हमारे साथ शेयर करती थी, वो 80% रूरल बैकग्राउंड से होते थे। जी। वो इसलिए यहाँ आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पब्लिक सर्विसेज हैं हेल्थ केयर की, तो वो यहाँ आ रहे हैं। डिपेंड्स कि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं। अगर हम प्राइवेट जो काउंसलर साइकियाट्रिस्ट बैठे हुए हैं तो 500 रुपया घंटा फीस ले रहे हैं, तो वहाँ रूरल केसेस नहीं जाएंगे। लेकिन अगर डेटा हमारा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है, तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल बी that there are sufficient cases of mental health in the rural sector also. Yes, ma'am. It's not only for the students. As teachers, in this new generation, we are very scared to communicate with students. We don't understand in which angle they will consider our words, whether they will take it as a positive manner or a negative manner. We can't predict. And the new gen students, we can't even we don't know the methods to approach them. Like the olden days, how we were in schools and the relationship with our teachers, we can't even imagine now, because we also having a lot of stress, how to reach these students, how to treat them, how to teach them, all the angles we have to see. And a session like this is important for teachers also to relieve from centers, stresses and all. Thank you, ma'am. Yes, so I want to thank you, Professor Nikunj, Thank you, for your time. And I also want to acknowledge the efforts of the Grace Valley College, especially Dr. Sita Lakshmi and Dr. Usman, who have collaborated with us for a course like this. And as you can see, there's a large number of participants here, and they've all listened to you with great interest. So it takes two to tango. I must say, I'm just facilitating this synergy between the resource person and the
participants. And I'm very glad this session took place and this was a very successful session. So thank you, ladies and gentlemen. Let us meet tomorrow and let us once again extend our heartfelt gratitude to Dr. Nikunj Makwana for this Ma'am, very we have Rashida ma'am here to just officially tell a vote of thanks. Please move the vote of thanks. Okay. Thank you. Ma'am, Thank you. Rashida ma'am, please. Good evening, all. Am I audible? Yes, ma'am, ma'am. you're on. Yes, yes. Okay. On behalf of Grace Valley College and MMTTC Aligarh Muslim University, I sincerely thank Dr. Nikunj Makwana, Assistant Professor in Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for his enriching session on mental health. He spoke about the importance of mental health in general and how it affects students and teachers in higher education around the world, and especially the situation in Indian colleges and universities. His talk helped us understand why mental well-being is important in education. And I also extend my heartfelt thanks to our principal, Dr. Usman sir, for his constant support. I appreciate the dedicated efforts of the FTP team and thank all the participants for their active involvement. And once again, thank you all. Thank you all, Thank you. Faiza ma'am, Sita Lakshmi ma'am, and Usman sir, and all respected faculty members. Thank you very much. Thank you, sir.